guys, this is Rabia Tahir, and you are listening to the Brown Girl Rants. Welcome back to the podcast. It feels like it's been a while, and even though I just skipped a week's episode, or if you guys follow me on Instagram, which you all should, so you would know, or even if you follow me in the podcast, you would know that I did not upload it last week क्योंकि I was not feeling well or I just learned this new thing. I knew that it's a word, like, and I just learned this word or what the whole thing is called. So I was feeling blue. I was feeling blue और मुझे लगा कि I could not record an episode. I just did not felt the energy to record it or I did not uploaded it and everyone was like, it's fine. I did upload it, Call Me in ki podcast. Now the thing with do a podcast is that ke obviously it's 50-50 so you just cannot just आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते. You cannot just say anything. Obviously you have to consider other person's opinion. और मैं इतनी people pleaser हूँ तो मुझे तो होता है कि ओ मैं कुछ ऐसा ना कह दूँ कि किसी को कुछ हो ना और दूसरी बात ये है कि with that episode it was easy क्योंकि I have to just watch a movie and then talk about it and it was actually so much fun. I felt so much better after recording Call Me और I missed recording Brown Girl Rants लेकिन मुझे लगता है कि इधर it's more like an emotional level conversation तो I cannot have that conversation if I am not feeling good or the episode was actually starting over क्योंकि I need to start over in my life and in 2023 in this year लेकिन I did not felt like it so I just cannot sit here and talk about something when I'm not actually feeling something like that. Or I literally had the worst week of 2023, I think, last week. Even this week, मुझे लगता है आज it's better. लेकिन I am having very tough days और I am literally on the verge of crying every single day और on Sunday पूरा हफ्ता मुझे लगता है उसका बिल्डअप होता रहा है और on Sunday which was the worst day ever उस दिन showdown था and I cried after every 2 minutes literally और उसके बाद मुझे लगता है कि सिचुएशन भी मुझे लगता है कि आप अंदर से होते हो भरे हुए और सिचुएशन ऐसी बन जाती है सब कुछ ऐसा हो जाता है कि you're like okay it's I am out I am done लेकिन और the thing is that कि I don't know कि how people control their emotion or how people not cry or how people can stop crying I cannot do that अगर मुझे रोना है तो मुझे नहीं समझ आती कि how I could pretend कि आई एम आई एम फाइन और मैं अपनी वैसे ही लाइफ कंटिन्यू करूँ और डेली जो सारे चोर्स हैं वो करूँ और मत क्योंकि माई मॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल दैट डे और आई जस्ट फेल्ट सो बैड कि शी इज़ नॉट फीलिंग वेल फिजिकली और आई आई वॉज नॉट इन द मेंटल स्टेट कि मैं कुछ कर सकूँ मतलब it was so bad फॉर मी तो और मुझे मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे कंट्रोल करूँ तो दैट आई कुड बी देयर फॉर हर और आई कुड डू स्टफ और मैं ये करूँ और वो करूँ और वो करूँ तो आई डोंट नो हाउ यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस. So last week was rough, and I know for the fact that every single person who is listening to this feels that maybe you are not feeling like that right now and you are in a good mood. लेकिन साल में एक टाइम आता है महीने में एक टाइम आता है सीजन में एक टाइम आता है या कभी भी एक पॉइंट आता है when you feel like that and you do not have a particular reason कि किस वजह से हो रहा है लेकिन यू फील लाइक दैट यू फील ड्रेन्ड आउट जब आप लोगों में रह रहे हो इन्वायरमेंट में रह रहे हो या इवन आप अकेले भी रह रहे हो तो इट्स नॉट लाइक कि एवरी सिंगल डे यू विल वेक अप एंड फील ग्रेट और कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो इस चीज़ को कंट्रीब्यूट करती रहती हैं और कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ स्पेशली ऐसा होता है कि आई फील एंक्शियस और देयर आर थिंग्स जो मुझे एंक्शियस फील कर रही हैं लेकिन मैं आई एम नॉट ब्रेव इनफ to explain those things to address those things to myself कि मैं कहूँ रबिया इस वजह से you're feeling anxious मतलब कि मैं I'll always be like कि I don't know why I'm feeling like that लेकिन there are things that adding up to it और मैं अपने आप I never be real with myself मैं कहती हूँ हाँ उसका तो इतना कोई मसला ही नहीं है उसका इतना मसला नहीं है लेकिन deep down that thing is affecting me लेकिन at the same time I think sometimes there's no reason sometimes there's a bigger reason to be happy
और वो जो चीज़ आपको, छोटी चीज़ आपको इफ़ेक्ट कर रही होती है, तो वो इतनी वैल्यू नहीं करती। और कभी कभी ये होता है कि कुछ नहीं भी होता है, लेकिन आपके दिल में एक वॉइड होता है, आपको एम्प्टी एम्प्टी फील होता है कुछ दिन आपको नई खुशी फील होती। या अगर कोई चीज़ आपको पिछले दिनों में खुश कर रही थी, वो उतना खुश आपको उन दिनों में नहीं करी। तो मुझे लगता है एवरी सिचुएशन इज़ देयर एंड एवरी सिचुएशन इज़ वैलिड। और द थिंग, दिस गोज़ वे बैक फॉर मी। मैं सबसे पहले, मैं कभी भी इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करती थी कि मैं लो हूँ, लो फील कर रही हूँ, आई एम फीलिंग ब्लूज, या आई एम फीलिंग एंग्शियस, या आई एम फीलिंग सैड, डिप्रेस्ड। आई डिप्रेस्ड, मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता, आई स्टिल कैन नॉट एक्नॉलेज कि आई एम डिप्रेस्ड। शायद मुझे लगता है कि आई नेवर लुकड अप फॉर द सिम्टम्स ऑफ इट, क्योंकि मुझे लगता है कि आई वॉज अंडर दिस मिसअंडरस्टैंडिंग कि मैं ऐसी कोई चीज़ फील नहीं कर सकती, सैडनेस लो स्केल पे या हाई स्केल पे, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं है दुखी होने के लिए, तो मैं तो कर ही नहीं सकती ऐसा कुछ फील। और मुझे लगता है कि इवन दो आई वुड नॉट से दिस आउट अलाउड, लेकिन मैं काफ़ी बार सोचती थी कि यार ये लोग क्यों सैड हैं, इनके पास क्या रीज़न है सैड होने का। जो मेरे इर्द गिर्द लोग थे और दे वर गोइंग थ्रू समथिंग, और दे वर नॉट इन द बेस्ट, दे वर इन लो फेज ऑफ योर लाइफ, तो मैं कहती थी कि यार दे हैव एवरीथिंग, दे आर लिविंग अ गुड लाइफ, और सब कुछ है इनके पास, दुनिया की सारी अपेरेंटली चीज़ें जो आपको चाहिए होती हैं रहने के लिए, वो सब कुछ है इनके पास, तो फिर ये क्यों ऐसा फील कर रहे हैं। और मैं तब ये चीज़ एक्नॉलेज नहीं करती थी कि ये यू रियली डोंट नीड अ रीज़न टू फील लाइक दैट। देयर इज़ जस्ट सम डेज व्हेन यू डोंट फील लाइक giving your 100% or talking to someone or laughing or trying to force yourself to feel happy, या फिर आप अपने दोस्तों में enjoy करो, ये करो वो करो। Sometimes you do not feel like that and sometimes the sadness overpowers you। और मुझे लगता था how can that be possible, how can you feel sad without any reason, लेकिन it took me a while to realize कि sad, you can feel sad, there is emptiness, or you feel void, you feel anxious। और आप कभी कभी आप, मेरे साथ पिछला हफ्ता ये हुआ है कि आई वुड लुक एट माई फोन टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ एंड दैट थिंग वुड मेक मी एंक्शियस ओनली। और मैं सोचती थी कि ओ आई हैव फिक्शन, तो क्योंकि आई रियली लव फिक्शन राइट, तो मुझे लगता था कि ओ आई हैव बुक एंड आई हैव टीवी शोज एंड आई हैव फिक्शन, तो मुझे कभी भी इफ आई एम इन अ बैड मूड आई कैन वॉच ऑल ऑफ दैट और आई कैन स्टे इन दैट वर्ल्ड, क्योंकि फिक्शन मेक्स अ लॉट ऑफ पीपल हैप्पी राइट। लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि व्हेन यू आर इन दैट स्टेट, व्हेन यू आर फीलिंग लो, तो आपको कुछ देखने का या आपको कुछ पढ़ने का भी दिल चाहता है। इट्स बीन अ वीक आई हैवंट टच्ड द बुक आई वाज रीडिंग, आई हैवंट वॉच्ड द थिंग्स आई वाज वॉचिंग। मुझे लगता है इवन इफ यू वांट टू फील बेटर, इफ यू वांट टू वॉच समथिंग टू मेक यू फील बेटर, आपके अंदर वो अर्ज होनी चाहिए कि ओ आई वांट टू फील बेटर, तो मैं ये मूवी देख लेती हूँ। कभी कभी ये होता है कि आपके अंदर वो चीज़ होती ही नहीं है और आप नहीं कुछ अरसे के लिए बेटर करना चाहते या आप कोई एनर्जी नहीं लगाना चाहते। कभी कभी ये होता है बहुत से लोगों की प्रेजेंस की वजह से आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाता है, लेकिन कभी कभी आपका किसी से नई बात करने का दिल चाहता है या आपका नहीं दिल चाहता है टू रीच आउट टू समवन दैट वुड मेक यू फील बेटर, क्योंकि आप कुछ देर उस चीज़ में रहना चाहते हो या आप नेचुरली उस चीज़ से निकलना चाहते हो। तो अपने आप को आप नहीं फोर्स कर सकते कि मैं इस इंसान से बात करूं जब आपका नहीं दिल चाह रहा किसी से बात करने का, या मैं ये टीवी शो या ये बुक पढ़ लूं तो मुझे बेहतर फील होगा, क्योंकि आई डोंट थिंक दैट फोर्सिंग योर सेल्फ आउट ऑफ दैट इमोशन इज द आंसर। मुझे लगता है कि कोविड वॉज अ रियली अ टाइम चेंजर फॉर मी एंड फॉर एवरीवन। तो कोविड में आई रियली स्टार्टेड टू फील दोज इमोशंस इंटेंसली, और तब आई वुड नॉट एक्नॉलेज दैट आई एम फीलिंग इमोशंस लाइक दैट, क्योंकि मैं कहती थी ओ आई एम अ हैप्पी गो लकी पर्सन, आई एम नॉट सपोज टू बी सैड, ये तो है ही नहीं, ये तो मैं हूँ ही नहीं। आई वॉज वॉचिंग दिस वीडियो टूडे, इट्स मैंने अपने ट्विटर पे शेयर किया, तो यू गाइज कैन चेक आउट माई ट्विटर इफ यू गाइज वॉन्ट टू। it was this video of a Barbie by the way, और वो सबको कह रही है कि I feel sad। पहले ऐसा होता था कि I would feel guilty for feeling sad, मुझे लगा कि that's the exact same thing for me, and she was like I could not, or I told myself कि I could not feel sad क्योंकि I am an upbeat person, I always have to be happy and smiling, how can I be sad, मतलब मुझे guilt होता था sad होने को। और दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग विद मी, क्योंकि आई माई सेल्फ कॉल माई सेल्फ अ हैप्पी गो लकी पर्सन, तो मुझे लगता था कि ओ हाउ कैन आई बी सैड,
मैं कैसे दुखी हो सकती हूँ, मैं अपने आप को इस चीज़ से निकाल क्यों नहीं रही। मुझे तो लगता था कि मुझे अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, मैं क्यों नहीं अपने आप को खुश कर सकती। मुझे तो लगता था मैं अपने आप को खुश कर सकती हूँ, मैं तो ये भी कर सकती हूँ, मैं तो वो भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे क्यों नहीं खुशी हो रही है, वाई। उसके बाद मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट्स ओके टू फील लाइक दैट। यू डू नॉट हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू फील हैप्पी इफ़ यू डू नॉट फील लाइक इट। अब बात ये होती है कि व्हेन यू हैव अ बैड डे, मुझे, और जब देयर इज़ नो रीज़न for you to feel that anxious, or there's this void in your heart and you're feeling empty, या फिर कभी कभी ये होता है कि कोई बहुत ही छोटी माइनर चीज़ें होती हैं, कुछ वर्क में इशू होता है, यूनिवर्सिटी में होता है, फ्रेंडशिप में होता है, पेरेंट्स में होता है, कुछ भी ऐसा एक तो होता है बहुत बड़ा इशू होता है, और उस पर मतलब कि either you're grieving or there's something that is huge happened which is apparent to you कि I am down because this thing happened, लेकिन sometimes you do not know। और ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली कब ऑन एंड ऑफ होता है कि किसी दिन आप बहुत खुश उठते हो और आपको खुशी फील होती है और पॉजिटिविटी फील होती है, और कभी कभी आप उठते हो और आपका नहीं दिल चाहता कि मैं बिस्तर से भी उठूं, किसी से बात करने का भी नहीं दिल चाहता। और जब ऐसे डेज आते हैं तो इफ देयर इज अ डे यू आर फीलिंग सैड फॉर नो रीजन एट ऑल, I believe that there would be a day when you feel happy for no reason at all and you want to give the best of you and you want to pour love in this heart. We all feel that. So I just started accepting that कि it's okay for myself, accepting that कि it's okay to feel emotions. अब मैं बहुत देखती हूँ कि the people who are sad or who like darkness or who have made, जैसे मैं अगर कहती हूँ कि I have made being loud and chirpy and outgoing my whole personality, वैसे कुछ लोगों ने being dark and being मतलब low or low energy have made their personality. With those people, I think I have seen multiple people who do not want to get out of that state and they do not want to feel happiness. और फॉर पीपल लाइक मी हु हर वक्त जो है वो बोल रहे होते हैं कि ओ बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, दे ट्राई टू अवॉइड बीइंग सैड। तो अगर हम किसी एक इमोशन में हैं और हमने अपनी पर्सनैलिटी एक इमोशन के साथ अटैच कर दी है, विच इज़ अ डेंजरस थिंग ऑब्वियसली, लेकिन अगर हमने अपनी पूरी पर्सनैलिटी एक इमोशन के साथ अटैच कर ली है, तो फिर हम अपने आप को अलाउ नहीं करते कि हम कोई दूसरा इमोशन फील कर सके। और एज अ ह्यूमन बीइंग यू आर मेड विद ऑल ऑफ दिस इमोशंस एंड यू हैव टू फील ऑल ऑफ दिस इमोशन एंड यू हैव टू लेट योर सेल्फ गो इन दोज इमोशंस। मतलब कि लेट योर सेल्फ ब्रीथ एंड लेट योर सेल्फ लिव इन दोज इमोशन यू आर फीलिंग राइट नाउ। लेट योर सेल्फ बी हैप्पी जब आपको खुशी मिल रही हो। इफ फॉर मी, फॉर अ पर्सन लाइक मी, इफ आई एम फीलिंग सैड, तो आई शुड अलाउ माई सेल्फ टू be sad for a day or two, जब तक मेरा दिल चाह रहा है और जब तक my brain maybe or heart maybe requires that emotion for me and or want that emotion for me. Forcing yourself to be happy when you're sad is not really a good idea, or that would make you more disturbed। ठीक है, यू कैन नॉट फोर्स इमोशंस ऑन योर सेल्फ, दिस इज व्हाट आई रियलाइज कि आप अपने आप को, एंड देयर इज सो मच ब्यूटी इन लेटिंग योर सेल्फ गो इन द इमोशंस यू फील। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि वो द आउटसाइड वर्ल्ड यू कैन ऑलवेज कंट्रोल कि आप लोगों को कितना बता सकते हो कितना नहीं बता सकते। फॉर मी आई डू नॉट लाइक शेयरिंग myself with other people when, especially when I am at a low point in my life। मुझे नहीं लगता कि, और इट्स नॉट लाइक कि मुझे बहुत धोखे मिले हैं या मुझे ये मिला है मुझे वो मिला है, मुझे पर्सनली कंफर्टेबल नहीं फील होता व्हेन आई टॉक अबाउट पीपल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू गाइस बाय द वे, दिस पॉडकास्ट इज एन एक्सेप्शन, नॉट एक्सेप्शन, लेकिन दिस इज अ प्लेस वेयर आई एम सपोज टू टॉक अबाउट इट। लेकिन वैसे इन रियल लाइफ जनरली आई डू नॉट लाइक टॉकिंग अबाउट इट टू पीपल। और जब मुझसे कोई पूछता है, स्पेशली अगर मैं ट्विटर पे लिख देती हूँ कि ओ आई डोंट फील गुड, और कोई मुझे डीएम करता है कि हे व्हाट्सअप यू कैन शेयर विद मी, तो मुझे नहीं समझ आती मैं उसको इंसान को क्या बताऊँ, क्योंकि I cannot put it in words. I cannot tell you, yeah, I cannot every single thing। और बात ये होती है कि इफ़ आई एम क्राइंग सो मच, इफ़ आई एम हिस्टेरिकली क्राइंग और आई एम फीलिंग लो, और उस वक्त मेरे साथ एक और इंसान बैठा है और उसके सामने मैं रो रही हूँ ना, तो देर इज सो मच चांस कि मैं 2 घंटे बाद रिग्रेट करूंगी कि वाई आई क्राइड इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन, लाइक लिटरली। क्योंकि आप जब रोते हो उस वक्त आप एक बिल्कुल पीक पे होते हो अपने इमोशन के, या बिल्कुल लो पे होते हो अपने इमोशन पे, एक्सट्रीम पे होते हो अपने किसी भी इमोशन पे, ठीक है ना, व्हेन यू आर क्राइंग। और होता ऐसे है कि 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद यू डू नॉट फील द सेम, आप थोड़ी थोड़ी जो है वो अपने
नॉर्मल उसमें आ रहे होते हो, अपने नॉर्मल मूड में आ रहे होते हो, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें वापस आ रही होती हैं या कुछ चीज़ें जा रही होती हैं, और आप आहिस्ता 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 नॉर्मल हो रहे होते हो और आप रियलाइज़ करते हो कि ओ शायद मैं उस वक्त बहुत एक्सट्रीम पे थी अपने इमोशन के, और विच इज़ सो मच वैलिड, बट आई डू नॉट फील द सेम एनी मोर। और अब मुझे वो चीज़ उस इंटेंसिटी से फील नहीं हो रही जो मुझे इस वक्त हो रही थी। तो फिर विद मी, अगर मैं जब उस इंटेंस पॉइंट पे हूँ और मैं किसी को बहुत कुछ कह दूं कि आई फील दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, तो मोस्टली ये होता है कि मुझे 2-3 घंटे बाद जब मैं अपने नॉर्मल इमोशंस पे वापस जा रही होती हूँ तो मुझे होता है कि यार क्या, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्यों कह दिया। एंड आई डोंट नो, इट्स नॉट लाइक कि मुझे बहुत मुझे आई कैन नॉट रिमेंबर द लास्ट टाइम आई टॉक टू समवन और उन्होंने आगे से मुझे बिट्रे किया हो, क्योंकि आई कैन नॉट रिमेंबर द लास्ट टाइम आई टॉक्ड अबाउट स्पेसिफिकली माई इमोशंस टू समवन, लाइक आई रियली डोंट। हाँ, कभी डिस्कशन कर रही हूँ और सब कोई अपना अपना शेयर कर रहा हो एक्सपीरियंस तो आई शेयर इट, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि मैं स्पेशली जब आई फील डाउन तो आई हैव दिस पर्सन जिसको मैं स्पेशली कॉल करूँ और सब कुछ एक्सप्लेन करूँ, और नॉट इवन माई फैमिली, क्योंकि मुझे लगता है सो एम्बैरेसिंग, क्योंकि विद सिबलिंग्स ऑब्वियसली दे विल टीज यू आफ्टर अ वाइल कि वो यू वर तो। और मुझे लगता है कि it's not like कि I do not, no one, no person provided me that, I think it could be that, लेकिन मुझे अभी उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। और मुझे अगर कोई इंसान वो चीज़ प्रोवाइड भी करेगा, मुझे थोड़े अरसे बाद रिग्रेट ही होगा। पॉजिटिविटी कैन कम आउट फ्रॉम एनी वेयर। आई सॉ दिस बारबी वीडियो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, और मुझे वो सुन के बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि यू आर ट्राइंग सो हार्ड, अगला बंदा, मुझे लगता है अगला बंदा इज जेन्युइन, आई एम नॉट सेइंग एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्लेम अदर पीपल, लेकिन मुझे लगता है कि हर किसी की अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। तो कभी कभी ये होता है कि मैं जितना लोगों से और बात करूँ मुझे और एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, और इस वजह से मुझे लगता है कि इट्स बेटर टू फॉर मी, क्योंकि एवरी वन फंक्शंस डिफरेंटली। और हर कभी कभी ये होता है कि कुछ लोग हैं ऐसे जिनका कोई बेस्ट फ्रेंड आ जाए या कुछ आ जाए तो उनको बेहतर फील होता है, या फिर दे कैन टॉक टू देयर पेरेंट्स अबाउट इट, ये वो। फॉर मी, अगर मैं कभी अपने लो पॉइंट पे मैंने अपने मम्मा या अपने बाबा से बात किया ना, मुझे बाद में इतना रिग्रेट हुआ है कि यार वो एवं ही परेशान हो गए होंगे, मैं उस वक्त एक एक्सट्रीम इमोशन फील करी थी, नाउ आई एम बेटर हाउ टू गेट इन थ्रू देयर ब्रेन एंड गेट दैट मेमोरी आउट ऑफ इट। तो मुझे अपने पता लग गया, और मुझे थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद पता लगा कि फॉर मी, इफ आई एम फीलिंग एन एक्सट्रीम इमोशन, extreme sadness, so it's so much better for me to be on myself and feel all of that, और फिर उसके बाद when I am starting to get normal, और तब मैं जो हूँ वो कर लूँ सही से। और जब मुझे, क्योंकि जब आप एक अगेन जब आप एक्सट्रीम पे एक चीज़ फील कर रहे हो तो आपके जहन में और बहुत से थॉट्स आते हैं, और जब आप उस चीज़ से आहिस्ता आहिस्ता करके निकल रहे हो तो आप कहते हो नो, आई एक्चुअली वॉज इन द हीट ऑफ मोमेंट दैट टाइम, तो मैंने ये सब कुछ सोच लिया या मैंने ये सब कुछ बोल दिया, आई एक्चुअली डू नॉट एग्री विद दैट एंड आई डू नॉट फील दैट एनी मोर। तो इस वजह से फॉर मी मुझे लगता है इट्स बेटर टू बी ऑन माई ओन, मैं खुद ही अपने आप को कोसूँ और खुद ही वो चीज़ें अपने जहन में बातें रखूँ, और फिर उसके बाद जब मैं नॉर्मल फील करूँ और जब मैं बेहतर इमोशन में हूँ कि मैं उस चीज़ से नेविगेट कर सकूँ या उस चीज़ से डील कर सकूँ, तो फिर मुझे हो कि अगर मुझे किसी इंसान से बात करनी है तो मैं इस मुझे मुझे अपने इमोशंस का सबसे बेहतर पता है, तो मुझे पता है कि मुझे किस पॉइंट पे किस इंसान से बात करनी चाहिए और किस इंसान से नहीं करनी चाहिए। तो विद मी, आई थिंक इट्स सम फॉर मी इट्स लाइक कि इस वक्त चुप रहो, व्हेन यू विल स्टार्ट फीलिंग बेहतर तो फिर उस चीज़ पे फिर से देखना। और कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑब्वियसली वैलिड होती हैं या रह जाती हैं, और कुछ चीज़ होती हैं जो आप उस चीज़ में इन द हीट ऑफ दैट इमोशंस आप वो चीज़ फील करते हैं। लेकिन रिगार्डलेस आई थिंक कि यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड यू आर बोर्न टू फील ऑल दीज इमोशंस, एंड वी at some point in our life would feel all of these emotions, and I think there is beauty in it. Obviously I think you should feel everything sometimes। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो एंड यू आर लेटिंग योर सेल्फ बी सैड एंड फील सैडनेस, जब आपका दिल या दिमाग में वो चीज़ है या कोई चीज़ आपको कर रही है, तो अपने आप को पुश करना कि नहीं मैं खुश रहूँ, मैं ये करूँ, मैं उठ के बुक पढ़ लूँ या ये कर लूँ वो कर लूँ, ज़्यादा आपके साथ ज़्यादती है, क्योंकि यू वांट टू कम्फर्ट योर सेल्फ। और कभी कभी ये होता है कि आप उस इमोशंस में रहने से ही अपने आप को ज़्यादा कम्फर्ट दे सकते हो और आप कंफर्टेबल रह सकते हो। आई होप that makes sense. So for me, I think growing up, I would always see people around me having relationship problems. Not growing up, like especially in high school. और उस वक्त कंटेंट भी हम ऐसा देखते थे जिसमें बस लगता था कि यही है,
और दिस लाइन के और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, एंड आई ट्रूली फील दैट। क्योंकि जब कोई मुझे लगता है दुखी होता है तो इनिशियली सबका फर्स्ट थॉट यही होता है कि ओ इसकी बंदी ने इसको कुछ कह दिया, ओ इसके इसका ब्रेकअप हो गया है, ओ मतलब ऐसा कुछ हो गया, राइट? तो और फॉर मी अब आके मुझे रियलाइज़ होता है कि लिटरली और भी गम है इस ज़माने में मोहब्बत के सिवा। और ऑब्वियसली मोहब्बत मोहब्बत गम नहीं है, मोहब्बत एक चीज़ है सेलिब्रेट करने की। लेकिन आपको उस चीज़ में गम होता है जब ऐसा कुछ हो। लेकिन और स्पेशली जब आप अपनी यूथ में हो, और क्योंकि जब आप अपनी यूथ में होते, जब आप पैदा हुए हो तो आप शुरू से हर रिलेशन देख रहे हो, आप दोस्ती देख रहे हो, आप बहन भाई देख रहे हो, आप माँ बाप देख रहे हो। जब आप अपनी एडल्ट लाइफ में जाते हो या जब आप यंग होते हो, तो वो एक चीज़ नई चीज़ होती है जो आपकी ज़िंदगी में एंटर होती है, और इस वजह से वो चीज़ आपको दुखी करती है, क्योंकि वो एक नई चीज़, वो एक नया इमोशन आपकी लाइफ में आता है, एक नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आता है। इस वजह से वो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट भी करती है, क्योंकि आप पूरी ज़िंदगी देखते हो कि दिस इज़ द थिंग दैट इज़ सपोज टू मेक मी हैप्पी, एंड दैट इज़ सपोज टू कंप्लीट मी, that is supposed to make me feel appreciated and loved। और क्योंकि हमने उस चीज़ को एक इतना बड़ा चीज़ बना ली है, और मैं इस चीज़ से डिसएग्री नहीं करती। जस्ट बिकॉज आई डोंट फील दैट इमोशन, तो आई डोंट थिंक दैट आई एम द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। बट द अ न्यू रिलेशनशिप एंड एन इमोशन एंटर्स इन योर लाइफ के, तो अगर आपका रोमांटिक लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, और उसकी वजह से, और आप इतना आपने पूरी ज़िंदगी यू एक्सपेक्टेड ऑफ इट टू बी एवरीथिंग, या फिर द वे यू हैव सीन पीपल के इट्स सपोज टू मेक यू हैप्पी एंड एवरीवन क्रेव्स फॉर दैट, और इट वैलिडेट्स यू, ये सब कुछ, और उसमें जब कोई प्रॉब्लम आए तो यू फील दैट एंड यू, और आपको वो इंटेंसली फील होता है। और आप उस शायद उस रिलेशन एक पॉइंट पे आप उस रिलेशनशिप की ज़्यादा आपको वैल्यू होती है, जो भी आपका लव इंटरेस्ट होता है या जिससे भी आपको रोमांटिक मोहब्बत होती है, क्योंकि आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स या आपके दोस्त हर टाइम से आपके साथ रहे हैं। इवन दोस्त, मतलब जब आप किसी कम्युनिटी में जाते हो आपके दोस्त बन जाते हैं, और जब आप सोशलाइज किसी भी सोशल गैदरिंग में जाते हो तो दोस्त बन जाते हैं। और वो एक चीज़ वैस होती है जो नई नई आई होती है, और इस वजह से आप उस चीज़ को ज़्यादा भी वैल्यू करना शुरू हो जाते हैं, और ऑब्वियसली दैट इज सपोज टू बी द पर्सन यू आर स्पेंडिंग योर रेस्ट ऑफ द लाइफ इज, तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट शेयर। और मुझे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैरिज बाय द वे, क्योंकि मुझे लगता है कि आई डोंट नो, मे बी इट्स डिफरेंट फॉर मैरिज। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट having being in love with someone, और आपकी उनसे ना शादी हुई हो, तो मे बी आप यू जस्ट लव देम, और वो दे डू नॉट एक्नॉलेज दैट, या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आपका इरादा है कि मैं आगे जाके शादी करूंगा, या जो भी है, मतलब वो मैं शादी से पहले की बात कर रही हूँ, आपकी किसी से मंगनी हुई है, यू आर एंगेज टू समवन, यू आर नॉट लिविंग विद देम। तो उसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि यू आर नॉट लिविंग विद दैट पर्सन, बट यू वैल्यू दैट पर्सन सो मच, एंड यू वैल्यू दैट इमोशन, दैट रोमांटिक लव सो मच, कि आपको वो दुख सबसे बड़ा लगता है। और इस वजह से अब आके स्पेशली यंग जनरेशन में जो भी इंसान दुखी होते हैं, सबको लगता है कि इसका ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि वो सबसे बड़ा दुख माना जाता है। लेकिन और इस वजह से भी मुझे लगता है कि फॉर द मोस्ट ऑफ माई टाइम आई वुड नॉट फील कि मैं दुखी हूँ या मैं स्ट्रेस्ड हूँ, क्योंकि मैं कहती थी वो मैं क्यों होंगी, सब कुछ तो सही है मेरी ज़िंदगी में, आई एम नॉट इन लव विद समवन, आई एम नॉट इन अ रिलेशनशिप, मेरी तो वो सब कुछ तो है ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि बस वही एक चीज़ है जिस पे आप दुखी हो सकते हो। लेकिन अगेन और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। और फॉर मी द मोस्ट, मुझे लगता है कि फॉर मी आई हैव ओनली बिन टायर्ड, या आई हैव मोस्टली बिन टायर्ड, क्योंकि मे बी दैट्स द ओनली थिंग हैपनिंग फिलहाल। मैंने कभी भी आई नेवर लेट, इवन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आई नेवर लेट द यूनिवर्सिटी कॉलेज ड्रामा इफेक्ट मी दैट मेंटली, कि मैं पागल हो जाऊँ उस चीज़ के पीछे। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आई हैव नेवर बिन थ्रू अ फ्रेंडशिप ब्रेकअप, तो आई डोंट नो हाउ इट फील्स। हाँ, ऐसा होता है कि बहुत सी दोस्ती ऐसी होती हैं कि पहले हम बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब इतना अच्छी दोस्ती नहीं रही, वी ग्रू अपार्ट, वो अपने तरफ चली गई, मैं अपनी तरफ चली गई।
या फिर ऐसे हो गया, जो कि एक बहुत नेचुरल चीज़ है और नेचुरली वो चीज़ होती है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो और सब कुछ ख़त्म हो गया हो या बहुत बड़ा ड्रामा हुआ हो। और अब आके मैं इस पॉइंट पे हूँ कि एक तो ऑब्वियसली अब मेरा डेली है ही नहीं अपने दोस्तों के साथ, लेकिन जब मैं अपने फाइनल ईयर्स में भी थी यूनिवर्सिटी के, तो आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट। और अगर आगे से कोई मुझे मिसअंडरस्टैंड करता है, तो आई टोल्ड माई सेल्फ कि दैट्स नॉट माई बिजनेस। जिस इंसान ने मेरे साथ रहना है और जिस इंसान को मेरा पता है कि रबिया अच्छी है, वो रहेगा। और जो इंसान को नहीं पता या फिर वो नहीं देख रहा और फिर भी वो कोई ना कोई ड्रामा ढूंढ रहा है, तो मुझे ऐसे इंसान की ज़रूरत भी नहीं है। तो आई लेट माई सेल्फ बी इन पीस विद दैट फैक्ट कि अगर कोई मुझे छोड़ के जाना चाहता है अपनी ही जहन की मिसअंडरस्टैंडिंग वजह से, आई विल बी अ गुड पर्सन। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ, एंड आई विल नॉट ट्राई टू गेट इन्वॉल्व इन ड्रामा। मैं किसी की बुराई नहीं करूँगी किसी के साथ, मैं ये नहीं करूँगी। लेकिन उस सब के बावजूद भी अगर कोई ऐसा करता है, तो दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। फॉर मी इट्स मोस्टली बिन लिविंग इन हाउस और बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ सिस्टर। और मुझे लगता है कि दैट मुझे नहीं पता, और मुझे लगता है कि अभी कोई कुछ सुन रहा होगा तो कहेगा दैट इज़ नॉट एनीथिंग, बट फॉर मी दैट इज़ वेरी टायरिंग समटाइम्स। क्योंकि इवन दो आई नो कि एवरी सिंगल पर्सन इज़ गोइंग थ्रू देयर ओन थिंग्स। और मैं कभी कभी अपने आप को कहती थी कि ओ आई शुड नॉट फील एग्जॉस्टेड, माई मॉम वर्क सो मच, मैं शायद उस चीज़ का फ्रैक्शन भी नहीं करती, तो मैं क्यों एग्जॉस्टेड हूँ। या कभी कभी मेरे पे ज़्यादा बर्डन है, तो माई मॉम हैव डन सो मच वर्क जब मैं आई वॉज नॉट इवन कैपेबल टू डू ऑल ऑफ दिस, तो वाई शुड आई कंप्लेन। लेकिन मुझे लगता है कि एवरी वन इज़ लिविंग देयर ओन लाइफ। द थिंग दैट इज़ डेंजरस इज़ दैट कि आप किसी और की एग्जॉशन, आप किसी और की उस स्टेट को एक्नॉलेज नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि इवन इफ़ वी आर टायर्ड इन आवर ओन लाइफ, तो हम कहें कि ओ इसकी ज़िंदगी तो बहुत आसान है, इफ़ दे आर लो, इफ़ दे आर सैड। और आई सॉ दिस ट्वीट yesterday जिसमें किसी ने लिखा हुआ था कि आई डू नॉट वांट टू बी राइट, आई जस्ट वांट टू फील अंडरस्टूड। विद द पास्ट फ्यू वीक्स इट वाज लाइक कि मैं रात को जब सोती थी तो आई वुड बी सो हैप्पी कि फाइनली इट्स नाइट। सुबह होती थी तो आई वुड फील सो एग्जॉस्टेड कि आई हैव टू गो थ्रू दिस होल डे। और पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन कि स्पेशली गाइस, ठीक है, क्योंकि आई हैव दिस गाय फ्रेंड हु केम ओवर लाइक 2 वीक्स पहले, और ही वाज लाइक कि ओ इट्स सो इजी कि आप घर पे हो आराम से और आप काम नहीं कर रहे। आई टोल्ड कि भाई, even though I know कि having a physical job is much more tiring and it's much more maybe mentally challenging, लेकिन it's so easy। और स्पेशली जो मेरी फील्ड है अकाउंटिंग या आईटी, या जिसमें आपने कंप्यूटर के सामने बैठना है, कि आप कंप्यूटर के सामने बैठ के टिक 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 करो, अपना काम करो और उसके आपको पैसे मिलें। और आप मतलब इट्स सो ईजी। क्योंकि सिंस आई डू बोथ, आई कैन से फॉर द फैक्ट कि इट्स सो ईजी टू सेट इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर। मैं खुश होती हूँ जब मेरी वर्किंग आवर्स स्टार्ट होते हैं कि ओ आई कैन फाइनली जस्ट सिट ओवर देयर एंड वर्क। और बस मुझे कंप्यूटर पे काम करना है, पीछे मैं आराम से म्यूज़िक लगा के सुनूंगी, या आई कैन बी इन माई ओन थाट्स। एंड इट्स so exhaust is so much more difficult to live in a house with a bunch of people who have their own feelings and emotions, and उनके अपने मूड्स हैं, अपना उनका काम है, अपनी उनकी पसंद नापसंद है, और आपको सबको साथ लेके चलना है। सो मच मोर डिफिकल्ट। सीइंग योर पेरेंट्स गेटिंग ओल्डर इज़ वेरी डिफिकल्ट। और मुझे लगता है इट्स सच अ रिवर्स थिंग, क्योंकि जब आप बच्चे हो योर पेरेंट्स फील सो एग्जॉस्टेड कि जब आपका फाइनली स्कूल खुलता है या आप स्कूल जाते हो, तो देर लाइक ओ नाउ आई कैन डू माई स्टफ। तो इस वजह से जब when पेरेंट्स गेट ओल्ड दे नीड यू द सेम वे। और obviously you are young, और you feel are you are in the best like फीलिंग, और आपको अपने दोस्तों को टाइम देना, आपको फिरना है, आपको वो करना है, तो आपको लगता है कि ओ माई पेरेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। लेकिन आपको यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन देयर शूज, दे आर गेटिंग ओल्ड, दे नीड यू, यू आर देयर चाइल्ड, दे रियली लव यू, तो ऑब्वियसली दे नीड यू। तो यू हैव टू बी पेशेंट विद देम एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड देम। और अब मुझे लगता है कि दे नीड टू अंडरस्टैंड यू टू, कि you are in your youth and you want to do this and that, so there's always a balance. We just need to understand every person's emotion. मैं ये 10 बार कह, your parents will get old, उनका मूड चेंज होगा, और वो शायद एक बात 10 बार रिपीट भी कर दें, आपसे ज़्यादा सवाल भी पूछें, उनके वो शायद थोड़े से ज़्यादा कंजर्वेटिव भी हो जाएं, या उनको लगे कि ये चीज़ सही नहीं है, आपको उस चीज़ में करना है। और जब आप उनको चाहिए कि वो ये चीज़ अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आप
हर एज हिसाब से अलग अलग इमोशंस होते हैं, और हर किसी को लगता है कि वो जो चीज़ फ़ील कर रहे हैं वो सबसे मुश्किल है। जब हम स्टूडेंट होते हैं हमें लगता है कि यार सबसे मुश्किल चीज़ पढ़ाई है, और हमें इस चीज़ से निकलना है, इस जो भी दुनिया की कोई भी मुश्किल होगी वो इससे मुश्किल हो नहीं सकती। और जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा हमें कह रहे होते हैं या बड़े कि यार पढ़ना तो बहुत आसान है, बाकी ज़िंदगी की बहुत मुश्किल है। मतलब कि द स्टूडेंट कैन नॉट फील दैट, और द चाइल्ड कैन नॉट फील दैट, क्योंकि उसके लिए सबसे डिफ़िकल्ट वही चीज़ है। अगर आप वापस बच्चे बन के वो चीज़ कर रहे होगे तो आपको भी वही चीज़ सबसे डिफ़िकल्ट लगेगी। तो यू कैन नॉट कंपेयर कि व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर दिस पर्सन माइट नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, क्योंकि आप एक अलग सिनेरियो और अलग एज गैप में हो। Yeah, that's it. I think that's it for the podcast. Make sure that you guys are subscribing to the Brown Girl Rants and call me in. I'm gonna start watching The Summer I Turned to Pretty, क्योंकि हमने इस एपिसोड में उसके रिव्यू करने हैं। और उसके बाद फिर माई कज़न इज़ कमिंग ओवर विच इज़ वेरी एक्साइटिंग। माई बेस्ट फ्रेंड कज़न इज़ कमिंग ओवर, और शी इज़ कमिंग ओवर आफ्टर अ ईयर, तो आई एम गोना मीट हर आफ्टर अ ईयर, which is again very exciting for me. तो आई थिंक दैट आई एम गोना हैव द बेस्ट वीकेंड एवर, क्योंकि शी एक तो वी बोथ आर एज फेलोज, और हम वी हैव ऑलवेज बीन बेस्ट फ्रेंड्स, और it's always so good to have her, and I'm so excited. तो आई एम रियली एक्साइटेड कि वो आए। और फिर आई लेट यू गाइज नो, मतलब कि आई कीप यू गाइज अपडेटेड विद द स्टोरीज ऑब्वियसली। तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम द ब्राउन एट द ब्राउन गर्ल, एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर टू, एंड stay tuned for Call Me In as well, क्योंकि उस पे I review, not review, we just talk about shows, और उसके और it's a duo podcast, so I think it's so much fun. और I think कि last episode में there I opened about a thing, क्योंकि we had this conversation, तो you can get more of me. और अगर आप मुझे सुन के अकेले थक गए तो it's like a conversation between me and my very good friend, so it would be so fun for you. तो yeah, make sure to check that out as well. Subscribe to the podcast, or yeah, Allah Hafiz, bye. Stay safe, or let yourself feel the emotions, क्योंकि it's okay. You do not need to force yourself to be in a state to feel this and that and that, क्योंकि you will be lost, or you cannot force yourself for things.